वेलकम टू टुडेज एपिसोड जहां आपका फ़ोन, आपका ओटीपी आपकी वजह से नहीं लेकिन एआई की वजह से भी आपका पैसा गायब हो सकता है। इंडिया डिजिटल हो चुका है लेकिन स्कैमर्स उससे भी ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन डिजिटल चोरों की जो एक कॉल, एक लिंक, एक ओटीपी या एक डीप फेक वॉइस से आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे ओटीपी स्कैम्स, यूपीआई फ्रॉड्स, सिम क्लोनिंग, एआई वॉइस स्कैम्स और वो सब जिसके बारे में लोग तब सोचते हैं जब उनका पैसा जा चुका होता है। बट you'll know it before it happens. So sit tight because this just might be the most important episode of the year. So let's not waste time and start the episode with Mr. Abhishek Upadhyay. Let's get into the scam business. Hi sir. ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जेन्युइनली चाह रहा था कि कहीं से थॉटफुल इंसाइट मिले, क्योंकि एक दो बार मैं भी करते करते बच गया। ये साइबर फ्रॉड्स कितने प्रकार के हैं और क्या है एग्जैक्टली? बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। साइबर फ्रॉड मतलब जो डिजिटल माध्यम से फ्रॉड होता है, जी। दैट आर कॉल्ड साइबर फ्रॉड्स। दैट कैन बी थ्रू योर इंटरनेट बैंकिंग, दैट कैन बी थ्रू योर पेमेंट ऐप, that could be through any online portal that you are using for ordering something. So जो भी fraud digital माध्यम से होता है, that is called cyber fraud. Okay, now to understand why cyber fraud or awareness and sensitization regarding cyber security is necessary, इसके लिए आपको एक बहुत interesting statistics में देता हूँ। जी। Now, do you know what is the population of India? एग्जैक्ट Give me a rough idea, that's okay. मतलब 1-2 बिलियन तो होगी। It's 140 crore right now. Yeah. But you would be amazed to know that in a country with a population of 140 crores, there are not even more than 50,000 cyber trained police professionals. Oh. So you understand the ratio. And that is where awareness and sensitization plays a very important role. Now this awareness and sensitization, ये तीन साइड से चाहिए। पहली साइड है फ्रॉम द साइड ऑफ द पब्लिक। एज यू पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉक ऑन ऑल योर फिजिकल एसेट, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सोना गोल्ड हो गया, आपके बाकी के कोई हार्ड एसेट्स रहेंगे, आपका घर रहेगा, आपकी तिजोरी रहेगी, यू पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉक ऑन दैट। वैसे ही आपके डिजिटल एसेट्स अभी ज़्यादा है, so it is very necessary to put a strong lock or a strong security measure for that as well. Yeah. Second, awareness should come from the side, or awareness and sensitization should be given to the judiciary also. Now there is a good reason behind it. अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कभी एनेक्ट हुआ, आईटी एक्ट 2000। आप अगर 2000 की बात करोगे तो 2000 में देयर वाज नो इंटरनेट बैंकिंग, there was no digital payments. Correct. There was no e-commerce and online shopping. Yeah. But today these have taken forefront in the way money is being paid to various organizations. So अगर आप ये एक्ट देखोगे तो ये 25 साल पुराना एक्ट है, और अमेंडमेंट भी जो आया वो 2008 में आया। So that time that there was not much of technology. So that's the reason the governance of the latest technologies that have come in, like online shopping हो गया, e-commerce हो गया, digital payments हो गए, internet banking हो गया. So in order to counter or to come in terms of the new technology, that is the reason awareness and sensitization to the judiciary also becomes equally necessary. Yeah, very important. And third is from the side of police. Because sometimes clients come to us and they tell us के हमारा इतना इतना पैसा गया, we went to the police station, we tried to register an FIR, तो पुलिस बोलते आपने OTP किया तो इसमें फ्रॉड क्या हो गया? Very true. Okay, but to give your OTP in a fraudulent transaction is also part of the fraud. So necessary assistance should also be given from that angle. So only when there is awareness and sensitization from these three angles, that is when we are putting a step forward in making India a cyber secure nation. I totally agree with you, sir. And to continue, I would also like to share a live story that actually happened with us when I was doing a seminar in one of the colleges. जी, please. So what happened is, at the end of the seminar, when I was just leaving,
There was one boy who came to me and he told me that, sir, I want to meet you in the office. I gave him my number and everything, and next morning I received 2-3 calls from him, but I was in a meeting, so I could not attend the call. But then I understood that this matter is of some urgent nature. So I called him in the office in the evening. So when he came, eyes swollen, body worn out, his body language could tell me that something is, mentally wrong with this particular He's going through person. some big problem. Yes, he's going through some mental disturbance in his life. So I asked him what is the problem that he's facing. So that is when he told me that, I was chatting with an unknown girl on Facebook, and we shared some intimate photos and videos and some intimate moments. And now this girl is threatening to, upload all this or share all this information with the dean of the college. And in order to pay her 20,000, which she was asking obviously as a ransom, he was working in a call center and doing night shifts, and he was not able to attend college. So I took up this matter on humanitarian grounds. तो इन द फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमको पता चला कि जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस इज लाइक द पिन कोड ऑफ एनी एरिया. ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस इन वेरी सिंपल टर्म्स कि आप कहाँ पर हो तो वो वहाँ का पिन है. आपका जो पिन कोड है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर डिजिटल आईपी एड्रेस. वेरी ट्रू. ओके, सो पहले जब हम लोगों ने वी डिग्ड ऑन द इनिशियल पार्ट, सो वी केम टू नो दैट दिस आईपी एड्रेस इज एक्सेस फ्रॉम समवेयर विद इन द कॉलेज प्रेमाइसेस ओनली. अच्छा. And when we dig deeper, that is when we understood that this is not any girl. It is actually his own, roommate who's sharing a bed with him in the hostel. He Scamming him. He was, made a fake profile of a girl, and he was extorting money from him. Now, looking at the young age of that other child, the action was not taken, or it was just on a warning letter. But the point is, this is why awareness and sensitization is necessary. Because what you show online is always happiness. आप अगर आपके घर में कोई डेथ होता है, कभी आप उसकी फ़ोटो शेयर करते हो? कभी भी नहीं. आपके घर में अगर कोई बीमार है और हॉस्पिटल में है तो आप उसकी फ़ोटो शेयर करते हो? The only things that are shared on social media are your happy moments, recognizable moments. So you should always understand that life mein everything is not what you show on the internet. Internal चीज़ें क्या हो रही है ये आपको पता होना चाहिए, and that is the reason awareness and sensitization plays a very important role. Very true. I have one thing to ask कि आई थिंक पूरे इंडिया को पता है कि OTP स्कैम्स होते हैं. राइट. आप किसी को भी पूछेंगे तो वो बता देगा हाँ भाई होता है स्कैम. नोइंगली कि OTP दे दिया तो अकाउंट खाली हो सकता है. वाई डू इंडियंस स्टिल गिव देयर OTPs? So to answer this question, it is very necessary to understand the psychology of a cyber fraudster. They play on the basic human emotion of greed and fear. Now what greed? कि आपको कहीं लॉटरी लगी है, आपके बैंक में इतने पॉइंट से आप एनकैश कर लो तो आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा तुरंत. आप ये MSCB का बिल भर दो, नहीं तो आपके कनेक्शन कट जाएगा. सो फियर एंड ग्रीड, ये दो चीज़ों के ऊपर साइबर फ्रॉडस्टर्स की साइकोलॉजी डिपेंड होती है. एंड ये हमारे अंदर जो इंटरनल इमोशंस है ऑफ ग्रीड एंड फियर, इनको वो लोग मैनिपुलेट करते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका आज जीपे 5 मिनट में बंद होने वाला है, सिंस यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू मनी, यू विल सी ऑनलाइन कि हाँ ये ट्रू कॉलर में जीपे का ही कोई तो बंदा दिख रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर आइडेंटिफिकेशन. हाँ, और जल्दी से मेरा जीपे बंद हो जाएगा तो मुझे फियर का एक भावना आ जाता है. सो हाउ विल 10 चीज़ें मेरे से कैसे होगी? सो इन दैट फियर or in that commotion, you immediately you tend to do it. You tend to give that OTP. So that, and you would be surprised that the cyber frauds are happening with more and more of literate people. This is very shocking. जो प्रोफेशनल्स है, जो कॉर्पोरेट में C लेवल D लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके साथ करोड़ों के स्कैम्स हो रहे हैं. who handle करोड़ों क्लाइंट्स का डेटा उनके रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में, they are getting victimized in this. Which is very shocking. Which is very shocking. Yeah. And again, when we study this, it again comes down to the same two fundamental emotions. It's greed and fear. Now in corporates, what greed do we see?
दे विल कम अक्रॉस थ्रू वेरियस एड्स ऑन इंस्टाग्राम कि आप ये इसमें इन्वेस्ट करो, इस आपको 10% रिटर्न हम लोग हमेशा देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, चलो एक 10,000 रुपये लगा दिए, साइन अप करते हैं, साइन अप करते हैं, उनको 2,000 रुपये दिया जाता है उसके ऊपर, तो उनको लगता है हाँ इसमें तो पैसा आ रहा है, तो और 20,000 डालते हैं और 30, उसमें फिर उनको थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है, फिर उनको और विश्वास हो जाता है कि येस दिस इज़ जेन्युइन। बट जब वो एक हाई अमाउंट डालते हैं, दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि आई हैव बीन स्कैम्ड। यस, एंड जो पैसा भी उनको दिया जाता है एज देयर प्रॉफिट, वो भी फ्रॉड का होता है। सो इवेंचुअली उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। So they are manipulating all the funds for bigger funds. Yes, Yeah. yes. So that is how they establish trust, by giving you something, by showing you greed of yes, now on 10 you got 2 more. That's Yeah, a greed, na? obviously, yeah. Because if you look at normal investment options that are available in the market, they will tell you 10 nahi to hai, 20% guaranteed, that too in a year. Yeah, But if I tell you I'm giving it this to you in a month, yeah. you will at least take the bait for trying once. Yeah, 100% And without that is fail. what is happening. The most important thing, like today, our government, India, everybody is educated. Right. I think 99% people are tech savvy. Right. How do these guys get away with stealing money from the accounts? ऐसा क्या करते हैं ये लोग कि वो पैसा लेके गायब हो जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं? सी, गायब का बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रॉड्स, द मेन जो मास्टरमाइंड होता है, ही ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो लोग होते हैं, दे आर मेयर एजेंट्स, मैनेजर्स, और जस्ट दे आर जस्ट मैनेजिंग द फंड्स और डाइवर्टिंग द फंड्स फ्रॉम देयर एंड। नाउ विद द एडवेंट ऑफ क्रिप्टो, अभी तो खैर ऑल लाइक बिग प्लेयर्स हैव कम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट, दे आर बाउंड टू शेयर डेटा एंड एवरीथिंग विद द न्यू रूल्स एंड एवरीथिंग। बट 2-3 साल पहले ऐसे नहीं था। आपके पास फ्रॉड का पैसा है, मैंने उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट किया, ट्रेल खत्म हो गया। वेयर इज द ट्रेल? कहाँ गया वो? वी डोंट हैव एनी एक्सेस टू फॉरेन वेबसाइट्स और फॉरेन कंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, वी कैन नॉट गेट डेटा फ्रॉम देम। सो द ट्रेल इज ओवर, द मनी इज गॉन। मतलब these guys they use crypto max. Yes. But अब तो इंडिया में भी लीगल हो गया, अब तो एप्स आ गई हैं. राइट. सो नाउ कैसे हो गया दैट इवन बाइनेंस इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू गिव डेटा टू द गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज अ कंपनी नाउ, इट इज एज पर द न्यू रूल्स, इट इज नेसेसरी फॉर देम टू एस्टेब्लिश ऑफिसेस इन इंडिया. अच्छा. Now all companies like Facebook, Google, they all have grievance mechanism that are set up in India, जो पहले नहीं था. So government again came up with very progressive acts like DPDP rules 2025 जो अभी आए, which requires clear unambiguous consent. So for example, tomorrow if you log in into any website, आपको सिर्फ एक मार्क दिया जाता बाय क्लिकिंग दिस, यू आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन. अब ये ऐसा नहीं है. यू हैव टू पब्लिश द कॉपी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, ही विल स्क्रॉल थ्रू इट एंड ओनली देन ही कैन टिक. या अभी वो चेंज तो हुआ है. Yes. वेरी राइट. यू हैव टू सी कि आपने देख लिया होगा पूरा रूल्स. राइट. आपने तो खैर सर बोल ही दिया कि जिस पे मेरे को भी एक शॉकर फील हुआ कि ऑल द लिटरेट पीपल आर गेटिंग स्कैम. यस. बट आई फील ये सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं. सी, ऐसा टारगेट ये नहीं है. यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे डोंट टारगेट एनी स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन्स हो गए, यंगस्टर्स हो गए, या एज आई सेड दे टारगेट द मेंटालिटी. आज एक सीनियर सिटीजन क्यों एक वल्नरेबल टारगेट होता है? आई टेल यू अ लाइव एग्जांपल. देयर वाज वन पर्सन हु इज लाइक 60-65 ईयर्स ओल्ड. ओके, वो मेरे पास आया एंड ही टोल्ड मी, एंड वेरी स्केर्ड. आई सेड सर, मैं तो 65 ईयर्स ओल्ड का हूँ, देयर इज़ नो सच डिज़ायर्स लेफ्ट इन मी, बट आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम दिल्ली पुलिस saying that I have been watching pornographic channels, and because of watching pornographic channels I have been issued a notice, and they are giving me they have given me certain numbers to call on. And जो उनका उधर का करंट ऑफिसर है, उसका नाम, उसका सिग्नेचर, उनके स्टैम्प्स, एवरीथिंग वाज देयर इन दैट PDF. एंड ही वाज वेरी वरिड कि मैं क्या करूँ करके अभी. सो what we did is we first of all called on their official landline number. Fortunately उन्होंने उठाया. दैट इज़ अनदर गुड लक ऑफ दैट सीनियर सिटीजन, आई वुड से. नहीं तो जनरली द नंबर्स गेट अनआंसर्ड, बट दे पिक्ड अप. वी टोल्ड देम कि ऐसे ऐसे आपके ऑफिसर के नाम से ये आया है, एंड द ऑफिसर वाज शॉक्ड. नो, ये नाम से कोई है ही नहीं. कुछ हुआ ही नहीं है. नहीं, नाम से है बट ही हैज़ नॉट इशूड इट. ओह. So all these things are happening, and again
इफ़ यू बॉयल डाउन टू द बेसिक मेंटालिटी अगेन इट इज़ आइदर ग्रीड और फियर. इसमें फियर था. ये दो ही चीज़ें जब इंसान मतलब बिकॉज person should understand that there are no free lunches in the world. Yeah. And without committing any fault, you cannot be, implicated into that. 100%. But ये general public को पता नहीं है because they are not in, tune with the law as much as the lawyers or other professionals are, So उस वजह से ये सब चीज़ें होती है. So मान लेते हैं मेरे साथ स्कैम हो गया. What should be my first step जहाँ पे मैं कहीं कंप्लेन लॉग करा पाऊँ और मेरा पैसा आने की उम्मीद हो? See, reporting is the first step towards securing and safeguarding the money that you have lost. ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाता है because not reporting and wrong reporting. Now I'll tell you what is the difference between reporting and right reporting. Okay, so first thing आप report कीजिए, जैसे 1930 नंबर है या www.cybercrimes.gov.in ये वेबसाइट्स है, आप वहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए. Now what is good reporting? बहुत सारे क्लाइंट्स वेग लिख देते हैं कि इतने इतने बजे मेरा पैसा गया एंड दैट्स अबाउट इट. नो, यू हैव टू मेंशन प्रॉपर डिटेल्स. आपका नाम, कौन से अकाउंट से गया, किसके अकाउंट में गया. कोई डिजिटल आईडी रहेगा तो वो डिजिटल आईडी, कोई डिजिटल वॉलेट रहेगा तो डिजिटल वॉलेट, कोई क्रिप्टो का एड्रेस रहेगा तो वो क्रिप्टो का एड्रेस, कितने बजे गया, व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी, आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी गई. ये सारे चीज़ें ये कंप्लेंट में डालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी शुड ऑल्सो एनेबल द पुलिस टू टेक क्विक एंड फास्टर एक्शन रिगार्डिंग Very दिस. true. सो सबसे पहले रिपोर्टिंग एंड राइट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग इज नेसेसरी. सो फ्रॉम दिस ये तो चलिए मुझे पता है कि मैंने OTP दे दिया या UPI हैंडल मेरा था, मैंने किसी को बोल दिया तो स्कैम हो गया. फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ. तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा. हमारे यहीं पे काम करते हैं जहाँ मेरा स्टूडियो है बॉम्बे में. तो ही इज़ अ इंटरनेट प्रोवाइडर टू अस. तो एक दिन आए तो बड़े टेंशन में थे, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ आपके साथ. तो इज़ लाइक नहीं क्या बताऊँ आपको. मैंने बताओ ना सर क्या हो गया. तो वेरी नाइस पर्सन. तो उन्होंने ये बताया कि यार मैं सुबह उठा और जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे फ़ोन पे एक व्हाट्सएप आया हुआ है एक नंबर से जिसको मैं कॉल बैक नहीं कर पा रहा हूँ. उस पर एक न्यूड फोटो है एक लड़के की और लड़की की, और वो मेरे सिबलिंग्स हैं, वो मेरे बच्चे हैं. तो इमेजिन अ फादर लुकिंग एट सच फोटो, तो कोई भी मतलब एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएगा. टोटली. एंड देन ही स्टार्टेड रिकलेक्टिंग कि हाँ पिछले एक हफ्ता 10 दिन से मेरी बेटी भी थोड़ा ऑफ बिहेव कर रही है. तो उन्होंने अपनी बेटी को कन्फ्रंट किया कि भाई ये फ़ोटो है और तू भी थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम में हो तो बताओ. तब उसने जाके बताया कि उसको कोई स्कैमर 10 दिन से न्यूड फोटोज़ उसी की भेज रहा है और बोल रहा है मैं ये लीक कर दूंगा, और उसको बोल रहा है कि 20 या 30 हज़ार रुपये मुझे दो. तो उसने अपने डैड को बताया. तो अब ये गए तो खैर इनको तो बहुत डिफ़िकल्टीज आई, इन्होंने पुलिस कंप्लेन लॉग की, हर चीज़ की, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती थी. एक फ़ोटो से स्कैम हो गया ये. यस. नहीं, बट वो फोटो किसने डाला? ऑब्वियसली जो यूज़ कर रहा है. Exactly. So the point is that you should be very very careful of what data you are uploading. See, ये तो आप थोड़ा पहले की बात बता रहे हो क्योंकि अभी Facebook has put screenshot logs and everything. हाँ ये 2 साल पहले का किस्सा है. Yes. बट आज अगर मुझे किसी को मतलब किसी के साथ स्कैम करना ही है तो भले ही फेसबुक ने स्क्रीनशॉट लगाया, वही स्क्रीनशॉट का मैं दूसरे फ़ोन से तो फोटो निकाल सकता हूँ ना, या वही प्रोफाइल का मैं दूसरे फ़ोन से तो फोटो निकाल ही सकता हूँ ना. उसके ऊपर तो कोई फेसबुक रोक नहीं लगा सकता. So your data, your digital data is very very vulnerable. So you should always be responsible of what you are putting. Second thing, putting your photo is not wrong, okay, but if someone is misusing it, reporting is very important. क्या हो जाता है कि माँ बाप के डर के, क्योंकि what is the psychology of the children, कि भाई ये बात घर तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर घर तक गई तो मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद करवा के मुझे घर बिठा देंगे. ओके, सो यहाँ पे इवन पेरेंट्स शुड कम फॉरवर्ड एंड इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देयर चिल्ड्रन लाइक क्रिमिनल, they should actually have the courage and go to the extent of punishing the people who have made their children a victim in this particular matter. क्योंकि अगर पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे तो बच्चे बताएंगे नहीं, अगर बच्चे बताएंगे नहीं तो वो अंदर के अंदर मेंटली स्ट्रेस होते रहेंगे. एंड
ऐसे भी cases है wherein children, young people have committed suicide Yeah, that's what. because वो they नहीं were झेल very पाते हैं, scared yeah. to tell their parents. So Yeah. here, from the side of the parents, they should understand that it is not their children's fault, and they should, proactively come up and say that, we have to go ahead and ensure that my children are not being victimized anymore, and whoever is the culprit, we will go ahead and, file necessary actions against him. Very true, very true. सो फॉर एग्जाम्पल ये तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू साइबर. अभी एक आर्मी का केस था मेरे पास. ही वॉज अ नॉर्मल लो रैंकिंग ऑफिसर एंड ही हैड गॉन इन अ वेडिंग, एंड वेडिंग में दे मेट वन मोर ऑफिसर इन देयर ये ओनली इन द वर्किंग इन द आर्मी ऑल्सो. After the wedding, that person started harassing that 18-year-old girl of my client. Oh. Saying that तू मेरे से बात नहीं, तू मेरे से शादी कर, तू अगर मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं तेरे फोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूंगा. जबकि कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में. बट वो लड़की डर गई थी. मैं बोलती है कि मैं कैसे अपने फादर, क्योंकि फादर को बताऊंगी तो पूरा कॉलेज वॉलेज बंद करके मुझे घर बिठा देंगे. सो दिस इज वेयर द मेंटालिटी ऑफ द पेरेंट शुड ऑल्सो चेंज. व्हेन आवर चिल्ड्रन आर गेटिंग विक्टिमाइज, स्कूलिंग देम अबाउट यूजिंग द डिजिटल एप्लीकेशंस इज अनदर पार्ट. बट राइट नाउ गोइंग अहेड एंड सपोर्टिंग देयर चाइल्ड बिकॉज दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग and protecting them from more wrong happening is something that is the responsibility of the parents, which they should also understand. 100%. सो फ्रॉम किड्स एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी. आजकल लोग ऑनलाइन गेमिंग बहुत कर रहे हैं बच्चे, एंड दीज यंगस्टर्स हैव गॉन मैड. और ये गेमिंग ऐप पे जाते हैं और बहुत एसेसरीज और बहुत चीज़ें भी खरीदते हैं उसमें. तो उसके दो साइड है. एक तो यूज़र साइड है जहाँ पे हम जैसे लोग लॉग इन करके अपने कार्ड डिटेल्स डाल के गेम्स खेलते हैं, और एक है जो इनको एंडोर्स करते हैं. तो एंडोर्स वाली साइड की कहानी मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बार. यूज़र साइड पे यहाँ भी तो स्कैम्स आई एम श्योर होते ही होंगे. See, you should understand when you talk about online gambling that is coming up. Okay, आप अगर जाओगे तो in Pune as a city, Mumbai as a city, you will see so many hoardings of so many websites, wherein a lot of sports persons, lot of celebrities, lot of actors are openly promoting them. But if you log on to their website, you can see that they are neither registered in India nor they are allowed to start or continue their operation in India. Because online gaming we have banned. So how do a user go and attach his account and everything? So what happens is that if you talk about the websites that are in the still working right now, they don't have any company based account. They have account, they will give you account of random people in the country. They will never give you their registered account. Achha. So when you are putting money into, because what happens is these are all money mules. They will catch a very poor person who's not that financially capable, and जिसके वो जो 5,000 रुपये भी नहीं कमाता है, उसको अगर उन्होंने बोला कि मैं तुमको हर महीना 10,000 रुपये देता हूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके ये बैंक में मेरे साथ आओ और ये अकाउंट खोलो, वो बेचारा खोल देता है. उसको तो पता ही नहीं है ये सब चीज़ें उसके अकाउंट के साथ होने वाली है. तो ये जो इलीगल वेबसाइट चल रही है, वो लोग ये ऐसे लोगों के अकाउंट्स यूज़ करते हैं. ओके. सो आई विल डिपॉजिट इन देयर अकाउंट, एंड जब मैं पैसे जीतता हूँ, जिस अकाउंट से पैसा आता है वो पैसा फ्रॉडुलेंट होता है. तो भले वो पैसा मैंने जीता है, 2-3 महीने के बाद कंप्लेंट हो जाती है साइबर पुलिस में, and then the rigmarole starts that you have to go give explanations, visit the court, give explanations, which is a tedious and financially expensive process. So मतलब if these guys hire me as their brand ambassador and if they pay me, तो 100% मुझे भी ED से नोटिस आएगा ही. See, आनी तो चाहिए. In fact, it should come because you cannot promote a product that is illegal. And all these stars, celebrities, they have huge legal teams with them. I don't know what due diligence is getting done from their side, because their legal team should in fact advise them कि आज तो आपको पैसा मिल जाएगा, but tomorrow if you are promoting a thing that is not legal in India, that money will come under scrutiny. And that is what is happening now. Very true. I would like to share a very interesting thing that happened with one of my clients. क्या हुआ? She got some advertisement on Instagram or some online channel, I don't exactly remember, saying that you can invest on this particular app and you will get good returns. So she invested round about 25-30 lakhs,
एंड जस्ट टू गेन हर ट्रस्ट टू मेक हर इन्वेस्ट मोर मनी 2-3 लाख रुपया उसके अकाउंट में वापस भी उन लोगों ने दिया. ओफ, उसके बाद उसने शी इन्वेस्टेड राउंड अबाउट $1 crore इन दैट पर्टिकुलर ऐप. दैट्स अ बिग अमाउंट. दैट्स अ बिग अमाउंट. एंड फिर उन लोगों ने उसको कुछ तो 50 to 60 लाख रुपीज़ रिटर्न दिया. नाउ ये देख के शी इन्वेस्टेड 1 more crore. सो टोटली शी लॉस्ट 2-3 crore रुपीज़ इन दैट एंटायर स्कैम. बट जो पैसा उसको रिटर्न आया वो फ्रॉडुलेंट सोर्स से आया था. सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दुकान में भी जाके मोबाइल लोगे बट अगर वो मोबाइल चोरी का है तो वो थेफ्ट प्रॉपर्टी हो जाता है एंड दैट कैन बी अटैच्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो जो पैसा आया था वो फ्रॉड से आया था, मतलब 4 जगह से स्कैम करके जो पैसा उन लोगों ने कमाया था वही पैसा इन लोग इनके अकाउंट में डाल दिया था जस्ट टू गेन हर ट्रस्ट एंड टेक आउट मोर मनी फ्रॉम हर. सिंस ये चोरी का प्रॉपर्टी था, अ केस गॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर इन वन ऑफ द सिटीज एंड शी बीइंग द विक्टिम, नाउ शी इज रनिंग हेल्टर स्केल्टर गिविंग एक्सप्लेनेशन टू ऑल अथॉरिटीज. This is very sad. This is very sad. So that is where your due diligence plays a very important role. And as I said, there are no free lunches available in the world. A person जिसको ये चीज़ समझ में आ गया वो साइबर क्या कोई भी टाइप के स्कैम में वो फंसेगा नहीं. If you talk about online scamming and security scenes, एक किसान है जिसने 1 लाख रुपए जोड़ के रखा है, उसको फ़ोन भी यूज़ करना नहीं आता, उससे एक गलती होगी, उसने OTP दे दिया है और उसका पैसा गायब हो गया है. तो उसके लिए एक इजी स्टेप क्या होगा, आप क्या सलाह दोगे उसको? सबसे पहले रिपोर्टिंग टू द बैंक, बिकॉज इफ यू रिपोर्ट टू द बैंक विद इन 72 आवर्स, बैंक हैज़ द राइट टू ब्लॉक दैट पर्टिकुलर मनी कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, बैंक ब्लॉक कर सकता है. सेकेंड, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द लोकल पुलिस स्टेशन और साइबर पुलिस स्टेशन वॉट एवर इज देयर इन योर जुरिस्डिक्शन, ताकि उनके तरफ से भी एक लेटर बैंक को जाए कि ऐसा ऐसा कंप्लेंट आया है कि ये पैसा फ्रॉड की तरफ से गया है, तो आप ब्लॉक कर दो उसको. तो सर जैसे मान लीजिए मैंने बैंक कॉल किया और होपफुली वो 72 आवर्स के अंदर था, दे हैव स्टॉप द मनी, बट वो जो अकाउंट में जाने वाला था उस अकाउंट की डिटेल्स मिल सकती हैं? तो आपको तो पता ही है जिस अकाउंट में आपने पैसा डाला है या जिस UPI ID में आपने पैसा डाला है, तो आपके पास तो ऑलरेडी वो डिटेल है. सो वो डिटेल पुलिस के पास जाती है, पुलिस भी बैंक को एक ईमेल भेजता है कि ये जो भी अकाउंट में पैसा गया है या जिस भी डिजिटल वॉलेट में पैसा गया उसको ब्लॉक करो, एंड देन यू कैन गेट द मनी बैक फ्रॉम द कोर्ट. आई वांटेड टू नो कि ये रियल और फेक प्रोफाइल में क्या फ़र्क है और ये क्या है एग्जैक्टली? ओके, वेल दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रियल प्रोफाइल एंड अ फेक प्रोफाइल. अगर आप एक रियल फेक प्रोफाइल देखोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट थिंग, ये प्रोफाइल कब बना है. मेजॉरिटी ऑफ द फेक प्रोफाइल्स विल बी न्यूली क्रिएटेड, जिसमें 4 से 5 पोस्ट होंगे. सेकेंड, वो पोस्ट भी जनरलाइज्ड होंगे कि कोई फ्लावर का फोटो है, कोई गुड मॉर्निंग का फोटो है, कोई किसी माउंटेन का फोटो है. देयर विल बी नो रियल इमेजेस. थर्ड, लाइक्स बहुत कम होंगे और अगर लाइक्स होंगे भी तो कमेंट्स बहुत कम होंगे. सो दीज आर द 3 थिंग्स यू हैव टू चेक कि ये कभी बनी है, क्या टाइप के फोटोज पोस्ट किए, लाइक्स कितने हैं. क्योंकि क्या होता है कि रिपोर्ट होने की वजह से लॉट ऑफ प्रोफाइल्स गेट ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड ऑल्सो, सो दे हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोफाइल्स. क्योंकि अगर एक प्रोफाइल से फ्रॉड उन लोगों ने किया तो दे कैन नॉट कीप दैट प्रोफाइल वैलिडेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो दे आइदर अबेंडन इट और या फिर कभी कभार वो ब्लॉक हो जाता है. सो दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग न्यू प्रोफाइल्स टू बी पब्लिश्ड. तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी चाहिए. Yeah, you before going and following that profile, yeah, accepting the request. Yes. So do you feel that AI could become the biggest weapon for scammers? It has already become. There are so many reels that are अभी मुझे याद है एक मैंने नारायण मूर्ति की रील देखी थी where he was saying that if you use this particular application for share trading, this will give you the most accurate results. And आपको अगर देखेगा सच में like when a person of that level is telling us to do something, it is definitely valid. But बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है that this is a fake video. अच्छा, उनका वीडियो ही AI generated video wherein he is saying that we have built such and such application for share trading and you should be using this application, this will give you the most accurate results. अब majority people will start. इवन एक इलॉन मस्क का वीडियो आया था जहाँ पे वो बोल रहा था कि आप ये इस पे लिंक देता हूँ मैं, आप उस पे लॉग इन करो, हर एक को मैं कुछ तो 5 बिटकॉइन वगैरह दूंगा. एंड व्हेन यूज्ड टू लॉग इन, that was AI generated and that was fake.
That was AI altered. अच्छा, AI altered. Yes, yes. I think he was giving $5,000 or $10,000. Yes, something he was some Yeah. crypto he was openly giving to everybody. Mm-hmm. Okay, so that was a scam. That was a data generation scam. They wanted to generate data of users. Oh. Yes, yes. So I hope people take our cyber security वाला podcast today seriously. Absolutely. और ये सब ना करें जो आप बता रहे हो. Like always, it was a pleasure having you on the podcast, sir. Well, the pleasure is all mine. एंड थैंक यू सो मच कि मैं चाहता हूँ कि आज की बात उन लोग तक जाएं और लोग बंद करें ये OTP देना और ये प्रोफाइल वाला जो आपने मैटर समझाया कि स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स. 3 things I will tell you. That first of all, always understand that there are no free lunches in the world. You have to pay a price for anything that you are getting in this world. There are no free lunches. Second thing, even if you are in a victimized in a scam, have the courage to report that, maybe to your parents, to the police authorities, or anybody who can help you out in that. Do not remain quiet. The more you remain quiet, the more you are getting deeply involved या into that. वेरी ट्रू. होगी गलती तो गो एंड एटलीस्ट टेल योर पेरेंट्स फर्स्ट कि भाई ये हो चुका है. Yes, yes. वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच सर Yes. एंड होप टू सी यू अगेन ऑन अ न्यू एपिसोड. Absolutely. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for inviting me. सो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा आज का. एंड प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा. कभी भी कोई OTP ना दीजिए. एंड सेव योर मनी. एंड लेट्स कैच these scammers together. So if you've liked the episode, please like, share and subscribe, and hope to see you again. Thank you so much.